हाँ, करें स्टार्ट। जी सर। सो हम कंपनी लॉ की क्लास में मेंबर एंड शेयर होल्डर वाला चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर तक कर लिया है। कोई डाउट लास्ट क्लास में? नो सर। नो सर। चलो, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है। आगे फर्दर इसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक शुरू होता है, पहला टॉपिक आता है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन ऑफ एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। Authentication of the register of entry in the register of member. Company is doing the entry in the register of member. Who will be authorized to authenticate the entry in the register of member? Basically, it is the responsibility of the company secretary of the company. The person responsible for doing entry, for doing authentication of the entry in the register of the member is the first company secretary in practice. No, sorry, company secretary of the company. Company secretary of the company. Or if there is no company secretary, by any other person. By any other person. Which is authorized by the which is authorized by the board of the director which is authorized by the board of the director for the purpose of authentication. For the purpose of authentication. But in such a case, if any person is authorized by the board of director, that person, it is mandatory for that person to mention the date of board resolution in which he or she authorized by the board for the authentication. उसको क्या करना है, अपनी जो भी वो एंट्री कर रहा है, कोई भी पर्सन अदर देन द कंपनी सेक्रेटरी, इफ एनी अदर पर्सन व्हिच इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड who is doing the authentication, who is signing to authenticate the entry in the register of member, along with their signature, he or she have to mention the date of the board resolution in which he is authorized or she is authorized by the board of director. Any doubt? No, sir. The second point, entry in the foreign register. Now we are talking about foreign register. Entry in the foreign register shall be authenticated by the company secretary of the company or person authorized by the board by appending his signature to each entry. Foreign register के केस में क्या होगा? Company secretary. If there is any company secretary, then company secretary, or in case if company don't have company secretary, then any person which is authorized by the board. In that situation, with each entry, the company secretary or any person have to appending their signature. हर एक एंट्री के साथ सिग्नेचर होगा. मान लो मंशा का नाम डाल दिया, we put the name of Mansha in the register of November. Mansha का नाम आया, along with the name of the Mansha, along with the name of the entry of the Mansha, we authenticate the signature, we authenticate the entry. तो हर एक एंट्री के साथ फॉरेन रजिस्टर में क्या होगा, ऑथेंटिकेशन होकर यहाँ पर चलेगा. सो नाउ ऑथेंटिकेशन क्लियर है? कोई डाउट? No, sir. ओके. मंशा, एनी डाउट? नो सर। चलो, अब आता है इंडेक्स ऑफ मेंबर. क्या होता है इंडेक्स ऑफ मेंबर? नो सर। हाँ, नाउ इंडेक्स ऑफ मेंबर as per section 88 subsection 2 of the Companies Act 2013, read with rule 6 of the Company Management and Administration Rule 2014,
require that every registered maintained under section 88 subsection 1. There is section 88 subsection 1 is talking about register of member. Section 88 subsection 1 ये बात करता है रजिस्टर ऑफ मेंबर का, क्लियर है? एंड सेक्शन 88 सबसेक्शन 2 बात करता है इंडेक्स ऑफ मेंबर का। क्या कहता है, बात करते हैं। Section 88 subsection 2 of the Companies Act 2013 right with Rule 6 of the Company Management and Administration Rule 2014 required that every register maintained under Section 88 subsection 1 of the Act shall include index of the name, index of member of the name include। ये कहना चाह रहा है कि जो भी रजिस्टर मेंटेन किए जाएंगे उसके साथ कंपनी क्या करेगी, इंडेक्स भी डाल के चलेगी। जैसे हमारी बुक्स होती हैं, बुक्स का फर्स्ट पेज पे इंडेक्स होता है जहां पे हमें पता चलता है कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे है। जस्ट लाइक दैट रजिस्टर के फर्स्ट पेज पे भी स्टार्टिंग में इंडेक्स होगा जिसमें हर एक मेंबर का नाम लिखा होगा और ये होगा कि इस मेंबर के नाम का जो प्रॉपर रजिस्टर में एंट्री है वो दैट पेज पे है, उस पेज पे है। क्लियर है? Every register maintained under subsection 1 of section 88 of the Companies Act 2013 shall include index of name entered in the respective register, and the index shall in respect of each folio contain sufficient indication to enable the entry related to the folio in the register to be readily found। ये कहना चाह रहा है कि हम उस इंडेक्स के अंदर हर एक मेंबर का हर एक उसका नेम के साथ फोलियो डाल देंगे और कंटेन सफिशिएंट इंडिकेशन, और कुछ इंडिकेशन डाल देंगे जिससे हमें ये पता चल सके कि भाई हम इसको पूरे रजिस्टर में इजीली हम क्या कर सके, उस एंट्री को देख सके कि कहां पर ये एंट्री है। वी कैन रेफर दैट एंट्री। क्लियर है? द कंपनी शैल मेक नेसेसरी एंट्री इन द इंडेक्स साइमल्टेनियसली विद द एंट्री फॉर द अलॉटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ एनी सिक्योरिटी इन द सच रजिस्टर। जैसे ही रजिस्टर के अंदर क्या होगा, किसी भी मेंबर ने को अलॉटमेंट हुआ या ट्रांसफर हुआ, उसके नाम की हम एंट्री कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली साथ के साथ हम इंडेक्स के अंदर भी क्या कर देंगे, एंट्री कर देंगे। क्लियर? एनी डाउट? और अगर इंस्पेक्शन की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंस्पेक्शन, जो प्रोविजन रजिस्टर ऑफ मेंबर पे एप्लीकेबल होते हैं सेम प्रोविजन फॉर द इंस्पेक्शन इंडेक्स ऑफ मेंबर पे भी एप्लीकेबल होते हैं, यहाँ पर चलते हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। ऑथेंटिकेशन समझ आ गया, इंडेक्स ऑफ मेंबर समझ आ गया, एनी डाउट? मंशा एंड गौरी No, sir. आगे बढ़े। No, sir. नाउ आगे Yes, बढ़ते हैं। sir. Yes, sir. Place of keeping and inspection of register, section 94। सेक्शन 94 की बात करते हैं। प्लेस ऑफ कीपिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर, कि किस तरह से हम मेंटेन करेंगे रजिस्टर ऑफ मेंबर को, कहां पे मेंटेन किया जाएगा, इंस्पेक्शन कैसे होगी, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। सबसे पहले बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। अब दो तरह से होते हैं, देयर आर टू प्रोविजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनीज एक्ट कहता है कि जो कंपनी है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर जो है मेंटेन करेगी रजिस्टर ऑफिस में, रजिस्टर ऑफिस में। और अगर कंपनी अदर देन रजिस्टर ऑफिस पे मेंटेन करना चाहती है तो उसके लिए क्या प्रोविजन होगा, अदर देन रजिस्टर ऑफिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि कंपनी जो अपना मेंटेन करेगी, kept करेगी, the register shall be required to kept and maintain by the company under section 88, and the copy of the annual return filed under section 92 shall be kept at the registered office of the company। बेसिकली यही रहता है कि कंपनी बेसिकली अगर कोई अदर प्लेस नहीं है तो रजिस्टर ऑफिस पे ही प्राइमरीली कहाँ पे रखे जाएंगे, रजिस्टर ऑफिस पे रखे जाएंगे। लेकिन हमने पहले भी बात की थी कि अगर सच रजिस्टर कॉपी ऑफ रिटर्न में ऑल्सो बी केप्ट एनी अदर प्लेस इन इंडिया इन विच मोर देन 1/10 of the total number of members enter in the register of
member reside. रजिस्टर ऑफ मेंबर में 100% का नाम है, 100 मेंबर्स का नाम है, उसका 10% 10 जहां पर 10 शेयर होल्डर, मतलब 10% कह लो, जहां पर 10 शेयर होल्डर रहते हैं, मान लो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है दिल्ली के अंदर, या तो दिल्ली के अंदर वो मेंटेन करेगी जहां पे भी उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, मान लो उसके शेयर होल्डर पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, और मान लो उसके 10% शेयर होल्डर मध्य प्रदेश में रहते हैं एक पर्टिकुलर सिटी में, तो फिर वहां पर उसके वहां पे भी क्या कर सकती है, वहां पे भी क्या कर सकती है, अपना वो रजिस्टर मेंटेन कर सकती है। इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग के अंदर। क्लियर है? एनी डाउट? नो सर। आगे बढ़े, No, sir. आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. जी सर। Now inspection of register. Now is talking about inspection of register. Inspection of register. इंस्पेक्शन की अगर मैं बात करूं, इंस्पेक्शन के लिए जो सेक्शन है, सेक्शन 94 सब सेक्शन 2 रेड विद रूल 14 ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014, रजिस्टर एंड देयर इंडेक्स except when they are closed under the provision of the act, and the copy of the return shall be open for inspection by the member, debenture holder, security holder, beneficial owner during the business hour without payment of any fees. ये कहना चाह रहा है कि जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है, एक सिचुएशन आती है, एक टाइम के लिए रजिस्टर्स को क्लोज कर दिया जाता है, वो आगे बात करेंगे कि कब रजिस्टर को क्लोज कर दिया जाता है, उस सिचुएशन के छोड़ के रजिस्टर ऑफ मेंबर जो है वो प्रॉपर ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स ऑफ द कंपनी, ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स ऑफ द कंपनी अवेलेबल रहेंगे, किस चीज के लिए, ओपन रहेंगे इंस्पेक्शन के लिए। इंस्पेक्शन कौन कर सकता है, मेंबर कर सकता है, दूसरा डिवेंचर होल्डर कर सकता है, डिवेंचर होल्डर कर सकता है, सिक्योरिटी होल्डर कर सकता है, या कोई भी बेनिफिशियल ओनर कर सकता है। सिक्योरिटी होल्डर कर सकता है या फिर कोई भी बेनिफिशियल ओनर कर सकता है। ये बिजनेस आवर के दौरान क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ एनी फीस, विदाउट पेमेंट ऑफ, ये विदाउट पेमेंट कर सकते हैं, विदाउट पेमेंट। इनसे अलग अगर कोई और दूसरा इंस्पेक्शन करना चाहे उसको फिर पेमेंट करना पड़ेगा, हर एक इंस्पेक्शन की उसको क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। इनसे अलग अगर कोई और पर्सन इंस्पेक्शन करना चाहता है तो बेसिकली उसको एक पेमेंट, इंस्पेक्शन करने के लिए पेमेंट देनी पड़ती है, जो कि ₹50 होती है, जो कि कितनी होती है, बेसिकली ₹50 होती है। क्लियर है, समझ आ गए? यस सर, क्लियर है। हाँ, तो सर इंस्पेक्शन के रीजन क्या क्या हो सकते हैं, किन किन वजहों से इंस्पेक्शन होगा? चेक करने के लिए कि एंट्री सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये भी चेक करने के लिए। मान लो आप कह रहे हो कि मैं उस कंपनी की शेयर होल्डर हूँ, अपने शेयर परचेज कर रखी हूँ, अब ये भी आप एक बार देखना चाहते हो कि क्या कंपनी ने रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेरा नाम डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ, क्या जिस दिन में मेंबर बनी थी वही डेट है या नहीं है, क्या नंबर ऑफ शेयर पूरे डाल रखे हैं या नहीं डाल रखे, आपको चेक भी करोगे ना आप चीजें। आप कह रहे हो कि मैं कंपनी की मेंबर हूँ, क्या पता आपकी एंट्री ही ना कर रखी हो, रजिस्टर में आपकी एंट्री ही ना हो। रजिस्टर स्टैट्यूटरी होता है, पूरा प्रॉपर स्टैट्यूटरी रजिस्टर होता है, जो परमानेंट रिकॉर्ड होता है कंपनी का, परमानेंट रिकॉर्ड। कंपनी को ये परमानेंटली, जब तक कंपनी की लाइफ रहेगी, ये परमानेंटली कंपनी को मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अलग अलग तरह से कोई भी रीजन हो सकता है कुछ भी चेक करने के लिए कि कंपनी क्या है, कितने शेयर होल्डर हैं, क्या क्या किस तरह से कंपनी के शेयर किस किसने ले रखे हैं, हर एक तरीके से चेक करने के लिए कि भाई जो भी रजिस्टर मेंटेन हो रहे हैं प्रॉपर्ली ऑथेंटिकेशन दी जा रही है, उनको साइनिंग हो रही है नहीं हो रही है, कोई भी चेक कर सकता है। क्लियर है? ओके सर। हाँ, अब बात करते हैं, यहाँ तो ऊपर तो बात होगी, इस वाले क्लोज में बात हो गई किसकी, इंस्पेक्शन की। अब आप कहते हो कि भाई मेरे को ना इंस्पेक्शन भी करनी है, प्लस मेरे को ना इनकी कॉपी भी चाहिए, मैं प्रिंट आउट फॉर्म में लूं या मेरे को इनकी कॉपी चाहिए।
या मेरे को कोई सर्टिफाइड कॉपी चाहिए इनकी अपने पर्पस के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए। तो अगर आपको कॉपी लेनी है, आपको रजिस्टर की या एनुअल रिटर्न की कॉपी लेनी है, तो कोई भी मेंबर, डिबेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर, बेनिफिशियल होल्डर या कोई भी अदर पर्सन वो क्या कर सकता है, टेक abstract फ्रॉम द रजिस्टर और इंडेक्स और रिटर्न विदाउट पेमेंट ऑफ फीस और रिक्वायर अ कॉपी ऑफ सच रजिस्टर। या तो वो क्या कर सकता है, abstract ले सकता है। abstract का मतलब होता है कि भाई कोई पेज की या पूरी किसी को कॉपी चाहिए रजिस्टर की, मुझे पूरी कॉपी चाहिए रजिस्टर की या मुझे रिटर्न की पूरी कॉपी चाहिए, तो फिर उसको क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी फीस की, हैज में बी स्पेसिफाइड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। बट उसकी क्या होगी, पर पेज के हिसाब से। मान लो रजिस्टर के अंदर 50 पेज है, तो पर पेज का आपको 10 रुपीज पे करना पड़ेगा। इट इज पूरे रजिस्टर का आपको कितना पे करना पड़ेगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 10, 500 रुपीज। फिर आपको मतलब पर पेज का आपको अगर कॉपी लेना है तो 10 रुपीज आपको देना पड़ेगा। क्लियर है? इंस्पेक्शन एंड द कॉपीज समझ आ Yes, गया? sir. एनी डाउट गौरी? No, गेटिंग माई sir. पॉइंट? वॉइस आ रही है मेरी? Yes, sir, आ रही है। ओके, नाउ फॉरेन रजिस्टर। अब आता है फॉरेन रजिस्टर क्या होता है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे बात किया था फॉरेन रजिस्टर के बारे में। फॉरेन रजिस्टर, फॉरेन रजिस्टर का जो सेक्शन है, फॉरेन रजिस्टर का सेक्शन जो बात करता है 88 सबसेक्शन 4 बात करता है कंपनीज एक्ट का। ठीक है ना? अब कंपनी के पास पावर है, कंपनीज एक्ट जो है सेक्शन 88 सबसेक्शन 4 जो है कंपनीज एक्ट का, वो पावर देता है किसको, कंपनी को, कि भाई कंपनी अपने जो रजिस्टर है to keep foreign register of member and debenture holder, other security holder, beneficial owner residing outside India। मान लो कुछ कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी की डिबेंचर होल्डर है, एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर है, इंडिया से बाहर रहते हैं। अब इंडिया कंपनीज एक्ट क्या करता है, एम्पावर करता है कि भाई हम वहीं पर, मान लो यूएस के अंदर कंपनी के शेयर होल्डर है, इंडियन की कंपनी है लेकिन शेयर होल्डर कहाँ के हैं, फॉरेन के हैं। तो कंपनीज एक्ट पावर देता है किसको, कंपनीज को, कि वो अपना इन फॉरेन मेंबर से रिलेटेड, डिबेंचर होल्डर से रिलेटेड जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए अलग से बाहर ही एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। इट स्टेट कंपनी में ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल कीप इट any country outside India in such manner as may be prescribed, part of register refer to in subsection 1 called foreign register। अपने रजिस्टर का एक पार्ट यूएस में रख सकता है, फॉरेन में रख सकता है, या कहीं किसी की दूसरी कंट्री में रख सकता है, जिसको फॉरेन रजिस्टर बोला जाएगा। और उस रजिस्टर के अंदर आउटसाइड द कंट्री जो भी फॉरेनर्स, आपके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी डिवेंचर होल्डर हैं, जितने भी एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर हैं, जितने भी बेनिफिशियल होल्डर हैं, उनके बारे में प्रॉपर्ली आप क्या करोगे, उनका नाम, उनके पर्टिकुलर्स उसमें एंटर करोगे। क्लियर है? Yes, sir. हाँ। फॉरेन रजिस्टर इज डीम्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द कंपनी इज प्रिंसिपल रजिस्टर। जो कंपनी का मेन रजिस्टर होता है सेक्शन 88 सबसेक्शन 1 के अंदर, वो रजिस्टर ऑफ मेंबर, वो प्रिंसिपल रजिस्टर होता है और इसको सबऑर्डिनेट रजिस्टर बोला जाता है, इसको पार्ट बोला जाता है प्रिंसिपल रजिस्टर का। एंड इट शुड बी केप्ट इन द सेम मैनर एज द प्रिंसिपल रजिस्टर एंड बी लाइकवाइज ओपन टू इंस्पेक्शन। जितना भी प्रोविजंस रजिस्टर ऑफ मेंबर का, जितना भी प्रोविजंस जो एक प्रिंसिपल रजिस्टर पर एप्लीकेबल होता है, सेम प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल विद द, किस पे होंगे, फॉरेन रजिस्टर पे। सारा का सारा सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, like maintenance of register of member, inspection of register of member, everything foreign register पे भी अप्लाई होकर यहाँ पर चलेगा। एनी डाउट? No, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। A duplicate of such register should be maintained at the registered office of India। मान लो आप क्या कर रहे हो, फॉरेन रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो, फॉरेन रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो। एक आपके शेयर होल्डर मान लो कहाँ है, दुबई के अंदर है, आपकी कंपनी कहाँ है, दिल्ली के अंदर है, दुबई में शेयर होल्डर है, आपने फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करना शुरू कर दिया, फॉरेन रजिस्टर। अब जैसे कंपनी का रजिस्टर ऑफिस तो यहाँ है, कंपनी का रजिस्टर ऑफिस में कौन सा रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, प्रिंसिपल रजिस्टर, प्रिंसिपल रजिस्टर।
इसके फॉरेन रजिस्टर के पैरेलल एक डुप्लीकेट रजिस्टर, इसी का एक डुप्लीकेट रजिस्टर कहाँ मेंटेन किया जाएगा? इंडिया में, दिल्ली के अंदर। रीजन क्या होगा? हो सकता है कि फॉरेन रजिस्टर में फॉरेन में ही मेंटेन हो रहा है, दिल्ली में कुछ पता ही नहीं है, अपने हिसाब से एंट्रियां करे जा रहे हैं। तो साथ के साथ जो भी एंट्री फॉरेन रजिस्टर में होगी उसके पैरेलल एंट्री कहाँ होगी? इंडिया के रजिस्टर में होगी। सो दैट की लास्ट में क्रॉस चेक किया जाए कि दोनों की एंट्री सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो कहीं ना कुछ गड़बड़ की हुई है, तो वो गड़बड़ हम पकड़ सकते हैं। क्लियर है? समझ आ गई? Yes, sir. Clear. A duplicate of such register should be maintained at the registered office in India, and all the entry made in the foreign register should be made in the duplicate register at the registered office as soon as possible. Clear है? Any doubt? पर जो फॉरेन में रजिस्टर मेंटेन हो रहा है, जो एंट्री हो रही है उसके अंदर, उसके पैरेलल सेम टू सेम जितना जल्दी हो सके हम डुप्लीकेट रजिस्टर में भी एंट्री करेंगे, सो दैट की बाद में जब क्या हो, लास्ट के टाइम पे जब एक बार हमें क्रॉस चेक करना हो तो एंट्री शुड बी सेम होनी चाहिए, जिससे हम ये पता लगा सके कि कहीं भी किसी तरह से कोई फ्रॉड नहीं है, कोई डुप्लीकेशन वो नहीं है, एरर नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। समझ आ गई? क्लियर है? एनी डाउट? जी सर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी में डिसकंटिन्यू नो a सर। foreign register at any time. कंपनी फॉरेन रजिस्टर को मेंटेन करना डिसकंटिन्यू कर सकती है किसी भी टाइम, बट ऑल द एंट्री मेड इन इट मस्ट बी ट्रांसफर टू प्रिंसिपल रजिस्टर। बट फॉरेन रजिस्टर में जितना भी एंट्री होगा आपको कहाँ ट्रांसफर करनी पड़ेगी? प्रिंसिपल रजिस्टर में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। Decision of the competent court in the state or a country in which the foreign register is kept with regard to the rectification shall be effective as it were decision of the competent court in India at the central government by notification in the official gazette. हमने बात की थी कि रेक्टिफिकेशन के रिगार्डिंग फॉरेन का अगर कोई रजिस्टर है, फॉरेन के शेयर होल्डर है, तो वहां पे जो भी वहां की कोर्ट है वहां पे आप केस फाइल कर सकते हो। और हम ये मान के चलेंगे कि जो भी फॉरेन के शेयर होल्डर ने फॉरेन में रेक्टिफिकेशन, फॉरेन की किसी कोर्ट में रेक्टिफिकेशन ऑफ मेंबर के रिगार्डिंग केस डाला है, हम ये मान के चलेंगे कि कोर्ट जो वो है सेम की सेम कोर्ट है जो इंडियन कोर्ट जो भी कॉम्पिटेंट है। जैसे एनसीएलटी है, इंडिया में एनसीएलटी है, तो एनसीएलटी जैसी कोई वहां पे जो कोर्ट होगी वहां पे आप रेक्टिफिकेशन के लिए, रजिस्टर के रेक्टिफिकेशन के लिए आप केस फाइल कर सकते हैं। क्लियर है? एनी डाउट यहाँ तक? कोई डाउट हो तो फॉरेन रजिस्टर के रिगार्डिंग मुझे बता सकते हैं। मंशा एंड गौरी, एनी डाउट? नो सर। मंशा, No, sir. गौरी? नो सर, नो डाउट। ओके। Sir, I left, sir, because network issue. अच्छा, you left due to That's why net. this concept I. No issue, no issue. You can watch No, the sir. recorded video. If you have any doubt, you can ask. Okay? Okay. Okay, sir. Okay, no issue. You can watch recorded video. No issue. Okay. Yes. Now हमारे पास आगे का कंसेप्ट आता है फाइलिंग फॉर्म विद द आरओसी। फाइलिंग फॉर्म विद द आरओसी। अब ये क्या कहता है, किस चीज के रिगार्डिंग हमें आरओसी में फॉर्म करना पड़ेगा? जब भी कंपनी फॉरेन रजिस्टर मेंटेन कर रही है, कंपनी ने फॉरेन में रजिस्टर मेंटेन करना शुरू कर दिया, वहां पे रजिस्टर, फॉरेन रजिस्टर की ओपनिंग हो गई। अब जैसे ही ओपनिंग होगी 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग विद इन 30 डे कंपनी क्या करेगी? फाइल करेगी रजिस्ट्रार को, आरओसी को, नोटिस ऑफ द सिचुएशन ऑफ द ऑफिस इन फॉर्म एमजीटी 3 अलोंग विद द फीस वेयर सच रजिस्टर इज केप्ट। मान लो भाई यूएस के अंदर न्यूयॉर्क में कंपनी ने अपना फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करना शुरू किया, एंट्री करना शुरू कर दी। जैसे ही फॉरेन रजिस्टर वहां पे ओपन होगा उसके 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को कंपनी नोटिस क्या करेगी? सेंड करेगी, फाइल करेगी, बताएगी कि कंपनी हैज स्टार्टेड टू मेंटेन द फॉरेन रजिस्टर एट दिस प्लेस ऑफ द यूएस। वहां की लोकेशन पूरी बताएगी और उसके साथ फीस भी पे करके आकर चलेगी। इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन द सिचुएशन ऑफ सच ऑफिस, और बाद में अगर कोई ऑफिस की लोकेशन में चेंज हो गया, और इफ इट इज डिसकंटिन्यूअस, अगर कंपनी ने
फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करना क्लोज कर दिया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर जब ये कोई चेंज हुआ या डिसकंटिन्यूएंस हुई, उसके 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, अगेन कंपनी फिर आरओसी को नोटिस देगी फॉर्म नंबर MGT 3 के अंदर। किस चीज के रिगार्डिंग, कि कंपनी ने अपना जो रजिस्टर्ड जो वहां का ऑफिस है उसको चेंज कर दिया है, वहां की लोकेशन को चेंज कर दिया है, ये कंपनी अब फॉरेन रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रही, तो उसके रिगार्डिंग कंपनी आरओसी को नोटिस देगी, ओपनिंग के रिगार्डिंग, चेंज के रिगार्डिंग, डिसकंटिन्यूस के रिगार्डिंग, व्हाटएवर द केस, कंपनी हैव टू फाइल एक ही फॉर्म नोटिस फिल इन होगा फॉर्म MGT 3। MGT 3। क्लियर है? जी सर। आगे बढ़ते हैं। फॉरेन रजिस्टर शैल बी डीम्ड टू बी अ Yes, पार्ट yes, ऑफ sir. कंपनीज रजिस्टर। जो फॉरेन रजिस्टर होगा कंपनी का जो मेन रजिस्टर प्रिंसिपल रजिस्टर है उसका ही पार्ट माना जाएगा। द फॉरेन रजिस्टर शैल बी मेंटेन इन द सेम फॉर्मेट एज द प्रिंसिपल रजिस्टर। जैसे हम प्रिंसिपल रजिस्टर ऑफ मेंबर को मेंटेन कर रहे हैं, उसी फॉर्मेट में हम फॉरेन रजिस्टर को भी मेंटेन करेंगे। द फॉरेन रजिस्टर शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन and may be closed and abstract may be taken therefrom and copy thereof may be required in the same manner mutandis mutandis। mutandis mutandis का मतलब होता है same to same, as it is mutandis mutandis। mutandis mutandis का मतलब होता है same to same। जैसे प्रिंसिपल रजिस्टर जो हमने अभी पढ़ा इंस्पेक्शन का और कॉपी अगर कोई लेना चाहता है क्या प्रोविजंस रहेंगे, सेम प्रोविजन फॉरेन रजिस्टर पर भी रहेंगे। क्लियर है, समझ आ गया? यस सर। ओके, बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, जब भी फॉरेन रजिस्टर को क्लोज किया जाएगा तो उसके रिगार्डिंग आपको कम से कम 2 दिन पहले, कम से कम उसके रिगार्डिंग आपको कम से कम क्या करना पड़ेगा, सॉरी, एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर में जो भी उस प्लेस में सर्कुलेट हो रहे हैं उस फॉरेन रजिस्टर के बारे में एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी जब भी फॉरेन रजिस्टर क्लोज होगा। क्लियर है? If foreign register is kept by company in country outside India, the decision of the appropriate competent authority in regard to rectification of register shall be binding। कि भाई कोई भी फॉरेन रजिस्टर है जो इंडिया से बाहर मेंटेन हो रहा है तो रेक्टिफिकेशन के रिगार्डिंग जो केस फाइल होगा उस कंट्री की किसी कोर्ट के अंदर ही केस फाइल होगा। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में आके केस फाइल करो, नहीं, उसी कंट्री की किसी कोर्ट में आप केस फाइल करोगे और उसको कॉम्पिटेंट कोर्ट माना जाएगा। क्लियर है? एनी डाउट? Yes, यस sir. सर। ओके, नाउ आगे। No, sir. Entry in the foreign register maintained under subsection 4 of section 88 shall be made simultaneously after the board of director or it is duly constituted committee approve the allotment or transfer of share, debenture या any other security has the case may be। ये कहना चाह रहा है कि जो भी क्या है, जो भी हम एंट्री कर रहे हैं, है ना, कि भाई फॉरेन रजिस्टर जो भी मेंटेन किया जा रहा है under section 4 subsection 4 section 88 shall be made simultaneously after the board or it is duly constituted committee approve the allotment or transfer of share as the case may be। तो वो होगी, the company shall transmit to the registered office in India copy of every entry in foreign register within 15 days after the date of entry। जो भी मतलब ये कहना चाह रहा है फॉरेन रजिस्टर के अंदर एंट्री हो रही है, एंट्री करने के साथ साथ उसके बारे में आप उसकी एक कॉपी फॉरेन रजिस्टर की जो आपने एंट्री नहीं की 15 दिन के अंदर अंदर इंडिया में भी उसको ट्रांसमिट करोगे। kept at such office a duplicate register of every foreign register duly entered from time to time। फॉरेन रजिस्टर की एक डुप्लीकेट कॉपी इंडिया के रजिस्टर्ड ऑफिस में भी, जो भी इंडिया में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां भी रखा जाएगा। एवरी सच डुप्लीकेट रजिस्टर शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट बी डीम्ड टू बी द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल रजिस्टर। और इस डुप्लीकेट रजिस्टर को भी प्रिंसिपल रजिस्टर का पार्ट माना जाएगा। यहां तक किसी का डाउट हो तो मुझे बताओ। एनी डाउट? No, sir. आगे बढ़े? नो सर। ओके। Yes, sir. Subject to the provision of section 88 of the Companies Act, rule made thereunder with respect to the duplicate register, the shares or as the case may be debenture
or any other security register यानी foreign register shall be distinguished from the shares or as the case may be debenture or any other security registered in the principal register or in every other foreign register, and no transaction with respect to any share or as the case may be debenture or any other security registered in the foreign register shall be during the continuance of that registration be registered in any other register. ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर मैं बात करूं एक प्रोविजंस है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 88 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल मेड देयर अंडर विद रिस्पेक्ट टू द डुप्लीकेट रजिस्टर। ये डुप्लीकेट रजिस्टर के बारे में क्या कहना चाह रहा है, जो भी शेयर्स होंगे, जो भी डिबेंचर्स होंगे, कोई भी सिक्योरिटी होगी जो कि फॉरेन रजिस्टर के अंदर क्या है रजिस्टर्ड है, शैल बी डिस्टिंग्विश, वो क्या होगी डिफरेंट होगी फ्रॉम दी शेयर्स or as the case may be debenture or as the case may be secure other security holder in the foreign register। ये कहना चाह रहा है कि भाई डुप्लीकेट रजिस्टर के अंदर और जो फॉरेन रजिस्टर के अंदर और जो दूसरे रजिस्टर के अंदर जो भी डिटेल्स वगैरह रजिस्टर होगी वो क्या होंगी अलग होंगी, वो सारी की सारी क्या होंगी अलग होगी, और जितनी भी ट्रांजेक्शन and no transaction with respect to the share or as the case may be debenture or any other security registered in foreign register shall during the continuance of that register be registered in any other register। और कोई भी मतलब जब तक फॉरेन रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, जब तक फॉरेन रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, फॉरेन जो भी फॉरेन सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो भी फॉरेन शेयर होल्डर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो किसी दूसरे रजिस्टर में नहीं होगी, वो सिर्फ फॉरेन रजिस्टर में ही होगी, और साथ के साथ उसका डुप्लीकेट रजिस्टर इंडिया में मेंटेन होगा, साइमल्टेनियसली उसकी एंट्री वहां पे होती रहेगी फॉरेन, और जो प्रिंसिपल रजिस्टर है प्रिंसिपल रजिस्टर में तब तक एंट्रियां नहीं होंगी जब तक कि फॉरेन रजिस्टर मेंटेन हो रहा है। एक बार फॉरेन रजिस्टर बंद कर दिया तो वो साथ के साथ प्रिंसिपल रजिस्टर के अंदर ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट? Yes, sir. Clear. No, sir. अब आता है हमारे आगे, द कंपनी में डिसकंटिन्यूज द कीपिंग ऑफ द फॉरेन रजिस्टर एंड देयरइन ऑल द एंट्री इन द रजिस्टर शैल बी ट्रांसफर्ड टू द सम अदर फॉरेन रजिस्टर केप्ट बाय कंपनी आउटसाइड इंडिया और टू द प्रिंसिपल रजिस्टर। कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी फॉरेन रजिस्टर को क्लोज कर सकती है, और जैसे ही क्लोज होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपनी चेक करेगी कि क्या यूएस के अंदर कहीं और पे भी हम फॉरेन रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अगर नहीं कर रहे तो जितना भी एंट्री उस रजिस्टर की जो क्लोज किया जा रहा है वो सारी ट्रांसफर कर दी जाएगी कंपनी के मेन रजिस्टर में, जो कि कहां पे मेंटेन होता है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। क्लियर है? एनी डाउट? Good, sir. No, sir. No doubt. नाउ क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर, क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर सेक्शन 19(1), सेक्शन 91। अब बात आती है क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर। टाइम लिमिट फॉर रजिस्टर ऑफ मेंबर, टाइम लिमिट फॉर रजिस्टर ऑफ मेंबर फॉर क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर। ये कहना चाह रहा है टाइम लिमिट फॉर क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। अ कंपनी साल के अंदर, एक साल के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 डे इन अ ईयर एक रजिस्टर को, रजिस्टर ऑफ मेंबर या कोई भी सिक्योरिटी का रजिस्टर है उसको क्लोज कर सकती है, बट एक बार में कंपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 डेज तक कर सकती है, एक साल में 45 डे, और कॉन्टिन्यूटी की अगर मैं बात करूं तो 30 दिन तक कर सकते हैं, कि जैसे आज कंपनी ने रजिस्टर क्लोज कर दिया तो कॉन्टिन्यूटी में क्लोज करना चाहती है तो कम से कम 30 डेज के लिए कर सकती है, और एक साल में ज्यादा से ज्यादा 45 डे तक कर सकती है। क्लियर है? समझ आ गई? पूरा साल में 45 डे और एक कॉन्टिन्यूटी में अगर कंपनी को करना है तो 30 डेज के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम। सॉरी, क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। Yes, sir.
No, sir. Company may close the register of member or register of debenture holder or register of any other security holder for any period or for period not exceeding in aggregate 45 day in a year but not exceeding 30 day at any one time. एनी वन टाइम का मतलब कॉन्टिन्यूटी में एक बार में कंपनी 30 दिन के लिए कर सकती है और पूरे साल में कंपनी 45 डेज के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर सकती है, सब्जेक्ट टू गिविंग प्रीवियस नोटिस एटलीस्ट 7 डे और सच lesser period has to be specified by Security Exchange Board of India for listed company or the company which intend to get their security listed in prescribed manner. लेकिन क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर से पहले आपको कम से कम 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा. क्लियर है? एनी डाउट? एनी डाउट? No, 7 sir. डे नोटिस किसका? 7 डेज का नोटिस आपको देना पड़ेगा कि 7 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा कि कंपनी इज गोइंग टू क्लोज देयर रजिस्टर फॉर दैट पीरियड. चाहे कंपनी 15 दिन के लिए क्लोज करे, चाहे कंपनी 20 दिन के लिए क्लोज करे, लेकिन एक बार में कंपनी 30 दिन के लिए ज्यादा से ज्यादा कर सकती है और पूरे साल में 45 डेज के लिए कर सकती है. एनी डाउट? क्लियर है? 45 डेज. हाँ. नाउ नो सर, क्लियर. नाउ अब आता है पेनल्टी. अब बात करते हैं पेनल्टी की. Penalty. If the register of member, debenture holder, security holder is closed without giving the notice as provided above, or after giving shorter notice than those who have provided, or for continuance or aggregate period in excess of the period specified, the company and every officer of the company who is in default shall be liable to penalty of rupees 5,000 for every day, subject to maximum of 1 lakh rupees during which register is kept surplus. अगर कंपनी, यहाँ पे 3 चीजें आप ध्यान रखो. कंपनी अगर नोटिस नहीं देती, कंपनी अगर शॉर्टर नोटिस देती है, या कंपनी 45 डे से ज्यादा, या फिर एक बार में 30 दिन से ज्यादा, ये लगा लो कि सेक्शन 91 के प्रोविजन को अगर कॉन्ट्रावेंट करती है, ब्रीच करती है, तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी. हर एक ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी लगेगी. कितनी? 5,000 रुपीज पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लगेगी? मैक्सिमम 1 लाख. 1 लाख रुपीज. क्लियर है? एनी डाउट? 1 लाख. हाँ. यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो मुझे बताओ. नो सर. यहाँ तक किसी का कोई डाउट? No, sir. आगे बढ़े. नो सर, कोई डाउट. चलो आगे जी बढ़े. सर. आगे बढ़े. नाउ प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर. अब बात करते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर. प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर अलॉन्ग विद इंडेक्स. रजिस्टर ऑफ मेंबर और इंडेक्स को परमानेंट कंपनी क्या करेगी? मेंटेन करेगी जब तक कंपनी की लाइफ है. सिंस इनकॉर्पोरेशन टिल वाइंडिंग अप, कंपनी हैव टू मेंटेन दिस रजिस्टर. क्लियर है? सेकंड, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर. रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर या एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर कम से कम 8 साल के लिए कंपनी मेंटेन करेगी. फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर परमानेंट मेंटेन होगा. फॉरेन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर कम से कम मिनिमम 8 ईयर के लिए कंपनी मेंटेन करेगी. यहां तक कोई डाउट? नो सर. No, sir. नाउ डेक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप. अब बड़े ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको. अब हमारे पास आता है डेक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप. नाउ हमारे पास आता है declaration of beneficial ownership. सेक्शन 90, 89 एंड 90 की बात करें.
अब हमारे पास क्या होते हैं, देखो दो ओनर होते हैं। ओनरशिप दो तरह की होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओनर। मैं थ्री टाइप्स की कहूंगा। एक होता है रजिस्टर्ड ओनर, एक होता है रजिस्टर्ड ओनर, एक होता है बेनिफिशियल ओनर, एक होता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। बड़े ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से सुनना। रजिस्टर्ड ओनर का मतलब होता है द पर्सन whose name are registered, the person whose name is registered under the register of member. But who have no right to receive dividend, who have no right to dividend or voting right। वो पर्सन जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर होता है बट उसके पास बेनिफिशियल राइट नहीं होती, राइट टू डिविडेंड नहीं होता, वोटिंग राइट नहीं होता, वो रजिस्टर मेंबर होता है। बेनिफिशियल ओनर का मतलब होता है, बेनिफिशियल ओनर का मतलब होता है अ पर्सन who have right to, the person who have right to receive dividend or right voting right, but whose name is not entered in the रजिस्टर ऑफ मेंबर। रजिस्टर ओनर बेनिफिशियल ओनर में समझ आ गया? कोई डाउट? Yes, sir. हाँ। No, sir. अच्छा, कोई आपसे पूछे कि रजिस्टर ओनर कौन होता है तो क्या बताओगे? The whose name is entered in the So the registered registered member, owner. but not hold Yes. any beneficial interest in the Yes, share. yes. So registered owner means, it means the person whose name is entered in the register of member but do not hold any beneficial interest. A beneficial interest here means the right to receive dividend or voting right. And beneficial owner here means, it means the person who hold the beneficial interest, the person who hold the beneficial interest in the share of the company, but his name is not entered in the register of the member. Clear है? Clear है? Yes, sir, clear है। हाँ, Yes, sir. तो सेम एंट्री है। रजिस्टर ओनर की जो डेफिनेशन दे रखी है वो सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 में दे रखी है। सेम डेफिनेशन है, सेम। इसको एक बार आप पढ़ लेना, इट इज सेम।
बेनिफिशियल ओनर की जो डेफिनेशन है सेक्शन 89 सबसेक्शन 2 सेम चेंज इन द बेनिफिशियल ओनर बेनिफिशियल इंटरेस्ट सेक्शन 89 सबसेक्शन 3 सेम। अब क्या आता है, बात करते हैं। अब बात करते हैं क्या होता है। चार चीजें होती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट है, कंसेप्ट को बड़े ध्यान से सुनना। एक बार आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो आप ये सारा आराम से पढ़ लोगे। हमारा टॉपिक क्या था? टॉपिक का नाम क्या था? डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप, यही था। बेनिफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप यही था। Declaration by the person not holding a beneficial interest in any share. डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप यही था। अब पढ़े, एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को। एक बार पूरा एक बार अच्छे से आपको समझा देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। ओके सर। हाँ, डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनर। जो बेनिफिशियल ओनर है ना, अब हमें ये पता है कि हो सकता है कंपनी के अंदर एक प्राइवेट कंपनी थी, लेट्स से इन माय एग्जांपल प्राइवेट कंपनी के अंदर लेट्स से पूरी की पूरी 100% शेयर होल्डिंग किसके पास थी? मान लो मंशा के पास थी। मंशा के पास पूरी शेयर होल्डिंग थी। ऐसा हो सकता है कि किसी के पास पूरा एक ही मेंबर, अब की प्राइवेट कंपनी के कितने मेंबर हो सकते हैं? कम से कम प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम 200, मिनिमम 2। मैक्सिमम 2, चलो मैक्सिमम छोड़ो, मिनिमम कितने होते हैं? 1। लेकिन यहाँ पे हमें कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मंशा ने क्या किया? मंशा ने एक शेयर के लिए, ओनली फॉर 1 शेयर, मिनिमम मेंबरशिप रिक्वायरमेंट के लिए कि भाई मेरी, क्योंकि एक तो हो नहीं सकती ना, अकेली मंशा थोड़ी हो सकती है, फिर वो तो 1% कंपनी का कंसेप्ट आ जाता है। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होना चाहिए। अब मंशा अकेली थोड़ी शेयर होल्डर हो सकती है। मंशा ने क्या किया? एक शेयर के लिए गौरी को नॉमिनी बना दिया। गौरी को नॉमिनी बना दिया। अब यहाँ पे एक मंशा हो गई जो कि 99.99% शेयर के नाम इसके, और एक शेयर उसने गौरी के नाम से रजिस्टर करवा दिया। अच्छा मुझे बताओगे गौरी यहाँ पर कौन सी ओनर है? रजिस्टर ओनर है या बेनिफिशियल ओनर है? गौरी, क्योंकि मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ। अब रजिस्टर ऑफ मेंबर में मंशा का नाम आ रहा है कितने शेयर के लिए? 99.99%, और गौरी का नाम आ रहा है एक शेयर के लिए। अब गौरी यहाँ पे कौन सी ओनर होगी?
रजिस्टर ओनर या बेनिफिशियल ओनर? बेनिफिशियल बेनिफिशियल सर। बेनिफिशियल हाउ बेनिफिशियल? क्योंकि रजिस्टर ओनर तो गौरी मंशा ने एक शेयर के लिए क्योंकि गौरी सर को, उसका रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम नहीं आ रहा। मंशा ने एक शेयर के लिए गौरी को अपना नॉमिनी बना दिया। नॉमिनी है गौरी एक शेयर की मंशा के लिए, बाकी तो ये शेयर मंशा का ही है, लेकिन मिनिमम शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए गौरी ने मंशा ने एक शेयर के लिए गौरी को अपना नॉमिनी बना दिया। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में गौरी का नाम है एक शेयर के लिए, गौरी यहाँ पे रजिस्टर्ड मेंबर है, रजिस्टर्ड मेंबर। लेकिन इस बट एक शेयर के लिए बेनिफिशियल जो है, बट दे डोंट रिसीव एनी बेनिफिशियल। बेनिफिशियल जो है इज मंशा। ओके सर। क्लियर है? ओके सर। नाउ यस सर। इन सच अ केस, अब आपको आरओसी को भी बताना पड़ेगा, आरओसी को बताना पड़ेगा ना एक शेयर के लिए कि कौन किसका बेनिफिशियल राइट है, इस पे बताना पड़ेगा ना। अब आरओसी को भी जी बताना सर। पड़ेगा, कंपनी को भी बताना पड़ेगा। आप लोगों ने आपस में कर लिया, लेकिन कंपनी को भी तो बताना पड़ेगा ना, आप लोगों को पहले कंपनी को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात आती है डेक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल ऑनर। जैसे ही मंशा ने गौरी को रजिस्टर्ड ओनर बनाया, इट मींस कि एक शेयर के रिगार्डिंग एस्को हैज पर सेक्शन 89 के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, डेक्लेरेशन देनी पड़ेगी, डेक्लेरेशन टू द कंपनी विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। जिस दिन इसके पास बेनिफिशियल ओनरशिप आई उसके 30 दिन के अंदर अंदर इसको क्या करना पड़ेगा, विद इन 30 डे डेक्लेरेशन देनी पड़ेगी। अब डेक्लेरेशन जो देनी पड़ेगी वो कौन से फॉर्म में देनी पड़ेगी, डेक्लेरेशन जो देनी पड़ेगी कौन से फॉर्म में देनी पड़ेगी, वो डेक्लेरेशन देनी पड़ेगी एमजीटी, वो डेक्लेरेशन देनी पड़ेगी फॉर्म एमजीटी। इसमें क्या होगा, देखो क्या होगा, दो सिचुएशन होगी, एक तो है गौरी, एक है मंशा। गौरी डेक्लेरेशन देगी बेनिफिशियल ओनरशिप की, गौरी बताएगी कि एक शेयर के लिए आई एम द नॉमिनी, आई एम द नॉमिनी फॉर दैट शेयर, मेरा जो बेनिफिशियल ओनर, तो गौरी विल गिव declaration inform MGT 4 to the company. Or on the same thing, Mancha also will give the declaration to the company, inform MGT 5. गौरी बताएगी कि ये जो एक शेयर है, इस एक शेयर के लिए आई एम द नॉमिनी ऑफ मंशा, कि एक शेयर के लिए मैं नॉमिनी हूँ मंशा के लिए, मंशा की नॉमिनी हूँ, एक शेयर की मेरे पास ये नॉमिनी है, मैं मंशा की नॉमिनी हूँ। और मंशा बता के चलेगी जो ये एक शेयर है इसमें मेरा बेनिफिशियल है राइट है, इसके लिए मैंने मंशा को नॉमिनी बना रखा है। गौरी विल गिव द डेक्लेरेशन इन फॉर्म एमजीटी 4, मंशा विल गिव द डेक्लेरेशन इन फॉर्म एमजीटी 5। व्हेन द कंपनी विल रिसीव दिस डेक्लेरेशन, तो इसके रिसीविंग होने के 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी विल फाइल द रिटर्न टू द आरओसी by attaching form 4 form 5 in MGT 6, और इसके साथ फॉर्म 4 एंड 5 जो है अटैच कर देगी। क्लियर है? जिस दिन मंशा ने गौरी को नॉमिनी बनाया, उसके नॉमिनी बनाने के 30 दिन के अंदर अंदर मंशा को एंड गौरी को क्या करना पड़ेगा, डेक्लेरेशन देनी पड़ेगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। बेनिफिशियल ओनर क्लियर है?
बेनिफिशियल Yes, ओनर sir. क्लियर है, रजिस्टर्ड Yes, sir. ओनर क्लियर है. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, नाउ चेंज इन द बेनिफिशियल इंटरेस्ट. अब चेंज हो रहा है बेनिफिशियल इंटरेस्ट में, ऑब्वियसली चेंज हो रहा है कि भाई मंशा ने अपने शेयर के लिए गौरी को नॉमिनी बना दिया. देयर इज चेंज, क्योंकि अब रजिस्टर्ड ओनर. ये सिचुएशन कब अराइज होती है? ये सिचुएशन तब अराइज होती है जब किसी एक शेयर के लिए, किसी एक पर्टिकुलर शेयर के लिए उसका रजिस्टर्ड ओनर एंड बेनिफिशियल ओनर are different. This situation arise when for one share there is registered owner and beneficial owners are different. Clear है? Then this situation arise change in beneficial interest. Where there is any change occur in the beneficial interest in the share, the person referred in subsection 1. Subsection 1 में person कौन था? The registered owner, that is Gauri, and person referred in subsection 2, beneficial owner. This is section 89 subsection 2 and registered owner is section 89 subsection 1. तो गौरी एंड मंशा को विद इन 30 days, 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द चेंज इन द बेनिफिशियल इंटरेस्ट, 30 days के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? गौरी को कौन से फॉर्म में देना पड़ेगा? एमजीटी. गौरी को कौन से फॉर्म में देना पड़ेगा? 4. एमजीटी 4 में. 4. MGT 4. एंड मंशा को कौन से फॉर्म में देना पड़ेगा? एमजीटी 5 के अंदर कंपनी को डेक्लेरेशन देना. MGT 5. क्लियर है? जब कंपनी के पास डेक्लेरेशन आ जाएगी उसके बाद क्या होगा? अब आगे बढ़ते हैं. अगर आप लोगों ने बेनिफिशियल इंटरेस्ट के अंदर कोई चेंज हुआ बट अभी आप लोगों ने कोई डेक्लेरेशन नहीं दी, यू हैव टू मेक डिफॉल्ट in filing the declaration. Then in such a case, its beneficial owner and registered owner, he shall be liable to a penalty of 50,000 rupees. In case of continued failure, with a further penalty of 200 rupees for each day after the first during which such failure continued. Maximum penalty is 5 lakh rupees. Minimum penalty 50,000 rupees. Maximum penalty 5 lakh rupees. अगर आप फर्दर पेनल्टी आपका फेलियर कंटिन्यू रहा तो आपको 200 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनल्टी पे करनी पड़ेगी और मैक्सिमम 5 लाख तक आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा. क्लियर है? समझ आ गया? नाउ Yes, sir. कंपनी को जब कंपनी के पास आप लोगों का डेक्लेरेशन रिसीव हो जाएगा, गौरी ने जो एमजीटी 4 दिया एंड मंशा ने जो एमजीटी 5 दिया, ये एमजीटी 4 और एमजीटी 5 जो है रिसीव हुआ है, इसके रिसीव होने के 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को रिटर्न फाइल